हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। और ये टॉपिक आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। आज हम सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो है हर एक पहलू पर विचार करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में सोशल कंट्रोल है यानी सामाजिक नियंत्रण है, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू द सोशल कंट्रोल द नेक्स्ट proponents here F. Ivan Nee. F. Ivan Nee, there is a most important sociologist here. Ivan Nee, 1958, not only elaborate a social control theory of delinquency but specified a way to the operationalized measuring, control or mechanism and related theme them to be self-report of delinquent behavior. You know that even Nee is a 1950 is not a elaborate a social control theory and delinquency but specify way to the operationalized measure control of mechanism and related them to the self-report of delinquent behavior. He formulated the theory after interviewing of 780 young people in Washington state. That's the most important theory given here. They're interviewing say 780 young people in a Washington state. The sample was criticized because it is not to be represent any urban environment. That's important line here. The example was criticized because it does not be represent any urban environments here. And those elected, a mile has been to more up to be described. There is a family unfavorably. There are families is unfavorably here. And somewhere is a concern that is a criminal activity was only mentioned in the two of the question. So the extrapolation to the crime in a journal were to the consider unsafe. Like a racist, there are focus on the family as a source of control. That's important here. Moreover, needs specify three different types of control here. Needs specify the three different types of control. Let's see. First here, direct control. Direct control base of punishment and reward. Direct control, the base here punishment and reward. Indirect
control here, affectionate of identification with a non-criminal. That's important. Indirect control here, a non-criminals here. And the next, internal control. Internal control means conscience of sense of guilty. Internal control here, conscience or sense of guilty. There is a most important Evine specify the social control here. The youth may be directly controlled through the constraint imposed by parents and limited their opportunity for delinquents as well as through the parental reward and punishment. That's important here. The young may be directly controlled here, imposed by parents. The limit the opportunity for a delinquency as well as through the parental reward and punishments. However, they may be constant when to free from direct control by their anticipations of parental disapproval. Disapproval means here indirect control. There is an anticipation of parental disapproval. Third, there is a development of conscience and internal constant on their behavior. That's important here. The development of conscience as an internal constant on the behavior. That's important. The focus on the family as a source of control was in a marked contrast to the emphasis on economic substance as a source of criminologic motivation at the time. That's important. The focus on the family as a source of control was a marked contrast to the emphasis on economic substance as a source of criminologic motivation at the time. Though he is a knowledge motivational force by starting that some delinquent behavior result for the a combination of positive learning and weak and ineffective social control. That's important here. There is an ineffective social control here. In 1958, he adopted a control of theory position when he proposed that, and most delinquent behavior is the result of insufficient social control. That's important here. The most delinquent behavior is the result of insufficient social control here. आगे देखें तो समर्थकों में यानी सामाजिक नियंत्रण के समर्थकों में इवानी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इवानी ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अपना एक रिसर्च दिखाया। देखा जाए तो इवानी 1958 में यानी 1958 में केवल अपराध के सामाजिक नियंत्रण सिद्धांतों को विस्तृत किया। यानी देखा जाए तो 1958 में जो उनका रिसर्च थी वो सारे के सारे रिसर्च जो थी अपराध के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पर प्रस्तुत थी। बल्कि देखा जाए तो नियंत्रण तंत्र को परिचालन यानी मापने के तरीके निर्देशित किए गए थे। यानी देखा जाए तो जो क्रिमिनल अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं उनके नियंत्रण के लिए एक मापन तरीके का जो है इन्होंने निर्दिष्ट किया। उन्होंने अपराधी व्यवहार की आत्म रिपोर्ट से जोड़ा। अपराधी व्यवहारों को इन्होंने आत्म रिपोर्ट से जोड़ा। उन्होंने वाशिंगटन राज्य में देखा जाए तो 780 युवाओं को साक्षात्कार के बाद सिद्धांत तैयार किया। यानी देखा जाए तो इनका जो रिसर्च थी वो 780 युवाओं के जो है इंटरव्यू के बाद इन्होंने तैयार किया था। इन्होंने सभी युवाओं से हर प्रकार के प्रश्न को पूछा, समझा और फिर जाके जो है अपना रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया।
इस नमूने की आलोचना की गई। देखा जाए तो जो इन्होंने इवान नी ने जो नमूना प्रस्तुत किया था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसके बहुत से जो है सामाजिककर्ताओं ने आलोचना की, क्योंकि यह किसी भी शहरी वातावरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और जो लोग चुने गए थे वो अपने परिवार का प्रतिकूल वर्णन करने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते थे, क्योंकि ये परिवार से कटे हुए थे, परिवार से दूर थे। इसलिए इस रिपोर्ट का बहुत से लोगों ने जो है आलोचना की। जर्नल सी बात देखा जाए तो जो व्यक्ति परिवार से कटे होते हैं उनको परिवार का गुण नहीं पता होता है और वो दोस्तों की बातों और उनके समाजों से काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इवान नी ने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया 780 युवाओं पर वाशिंगटन राज्य में, तो देखा जाए तो वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रतिकूल वर्णन करने के लिए अधिक उपयुक्त थे, यानी अपने परिवार के खिलाफ बोलने के लिए सही थे, क्योंकि ये परिवार के साथ नहीं रहते थे। तो इसलिए बहुत से जो यहाँ पर लोगों ने इनका आलोचना किया। कुछ लोग चिंतित थे कि आपराधिक गतिविधियों का उल्लेख केवल 2 प्रश्नों किया गया था, यानी बहुत से लोग उनके इस रिसर्च से काफ़ी हैरान थे कि आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत इन्होंने 2 ही प्रश्न रखे थे। इसलिए सामान्य तौर पर अपराध के अतिरिक्त निष्कर्षण को असुरक्षित माना गया था, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन से हम अपराधियों को जो है घोषित नहीं कर सकते और खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। रीस की तरह इन्होंने नियंत्रण के स्रोत के रूप में परिवार का ध्यान केंद्रित किया, यानी जैसे रीस ने किया था वैसे ही देखा जाए तो इवान नी ने भी वही बातों का अनुसरण किया। और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये थी कि नी ने 3 अलग अलग प्रकार के नियंत्रण निश्चित किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। 3 प्रकार के जो है इन्होंने नियंत्रण को प्रतिस्थापित किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला नियंत्रण था प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण में 2 बातों का इन्होंने प्रावधान रखा, दंड और पुरस्कार। यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण में यहाँ पर नी ने जो है दंड और पुरस्कार का महत्व को विषय दिया। दूसरे पॉइंट में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण यानी इनडायरेक्ट जो है कंट्रोल, इसमें उन्होंने गैर अपराधी के साथ स्नेहपूर्वक पहचान, यानी जो गैर अपराधी, जो अपराधी नहीं है, उनके प्रति स्नेह की भावना को जो है इन्होंने उजागर किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर उनका रिसर्च था। उसके पश्चात देखा जाए तो आंतरिक नियंत्रण, यानी आंतरिक नियंत्रण को भी इन्होंने महत्व दिया। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत उन्होंने विवेक या अपराध बोध की बात कही, यानी गिल्टी। आंतरिक नियंत्रण जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके विषय में हमने ऊपर भी पढ़ा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। हमने तीनों टाइप्स को विस्तारपूर्वक पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। आगे इवान नी ने बताया कि माता पिता द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों अपराधों को अवसर के सीमित करने के साथ साथ माता पिता के पुरस्कार और This दंड के topic माध्यम was से till युवाओं को this. सीधे नियंत्रण किया We जा will सकता do है। their next topic in the कहीं ना next कहीं यहाँ part. पर If इवान you नी ने like काफी it, then महत्वपूर्ण बात please दिया like, share, कि subscribe, माता-पिता and share द्वारा the लगाए video गए as a प्रतिबंधों much अपराध as a के अवसर possible. को सीमित Do करने not के think साथ-साथ subscribe and save in your माता-पिता के mobile. पुरस्कार और दंड के माध्यम से युवाओं को सीधी नियंत्रण किया जा सकता है और माता पिता ही ऐसे कर सकते हैं। हालांकि माता पिता की अस्वीकृति यानी अप्रत्यक्ष नियंत्रण की उनकी प्रत्याशा एवं विवेक के विकास के माध्यम से व्यवहार पर एक आंतरिक बाधा के कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण के मुक्त होने पर उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में इवान नी कह रहे हैं कि बच्चों को तब जो है स्वीकृति अप्रत्यक्ष होती है जब वो माता पिता से दूर होते हैं और वहाँ पर वो जैसा चाहे वैसा सीख सकते हैं। यानी देखा जाए तो ये ऐसे वक्त में उनके सहकर्मी सहपाठियों की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी पीर का जो है बहुत काफ़ी महत्व रहता है, क्योंकि जैसे वो पीर बनाएंगे यानी पीर ग्रुप में जाएंगे वैसे ही गतिविधियों पर जो है वो अपना कदम रखेंगे। नियंत्रण के माध्यम के रूप में परिवार पर ध्यान उस समय आपराधिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आर्थिक परिस्थितियों पर
जोर देने के बिल्कुल विपरीत था। यानी देखा जाए तो यहाँ आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित के होने के लिए आर्थिक परिस्थितियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। उस समय प्रेरणा के स्रोत के रूप में आर्थिक परिस्थितियाँ ही उनको गलत रास्तों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने प्रेरक शक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि कुछ अपराधी व्यवहार सकारात्मक शिक्षा और कमज़ोर और अप्रभावी समाज नियंत्रण के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। तो इस बात पे यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर भी समर्थन करता है कि देखिए, कुछ अपराधी व्यवहार सकारात्मक शिक्षा और कमज़ोर अप्रभावी समाज नियंत्रण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, शिक्षा में दंड पुरस्कार की बातें बताई जाए, जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं वो अपराधी जगत में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म का होता है उसका पारिवारिक सपोर्ट मिलता है। आपने देखा होगा कि कई मंत्री के बच्चे जो होते हैं ऐसे ऐसे अपराध कर जाते हैं और उसके बाद वो अपराध करने के कारण भी बच भी जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मंत्री की बात नहीं कर सकता, यहाँ पर हर एक अमीर बच्चे की बात कर सकता हूँ जिनके माता पिता काफ़ी रिच हैं और वो बच्चे गलत पे गलत कर रहे होते हैं, उनको डर नहीं रहती है। कारण क्या है, उनको ये बात का एहसास है कि उनके माता पिता काफ़ी रिच हैं और इन बातों को जो है बहुत सहज के तौर पर जो है कर लेंगे। और ऐसे हमारे समाज में कई बार देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्हीं कारणों से जो बच्चे हैं गलत रास्तों का अनुसरण करते हैं और आम गरीबों को कुचलते भी हैं। और इसमें कहीं ना कहीं परिवार का ही और शिक्षा का कमज़ोर स्तर ही है जो उनको ऐसे बनने के लिए मजबूर कर देता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो 1958 जब उन्होंने यह प्रस्ताव किया तो उन्होंने नियंत्रण सिद्धांत की स्थिति अपनाई। यानी देखा जाए तो एफ इवान नी ने जब 1958 में इस बात का प्रतिपादित किया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को प्रस्तावित किया। उन्होंने नियंत्रण सिद्धांत को स्थिति बनाई और अधिकांश अपराधी व्यवहार अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण का परिणाम है। ये इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकांश अपराधी व्यवहार जो है अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण का परिणाम है। देखिए, आज मैक्सिमम लोग जो है शहरों में रहना चाहते हैं और शहरों में एक ही बिल्डिंग में 100 परिवार रहते हैं और ये दूर दूर तक कहीं रिश्तेदारी गतिविधियों में नहीं आते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि कोई अगर बच्चा गलत गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो दूसरे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही उसकी आलोचना होती है। और मान लीजिए एक समाज है, उसमें चाचा चाची नाना नानी सब रहते हैं एक साथ, तो उसमें बच्चों का जो है आलोचना भी की जाती है, तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शहरों में आज आपराधिक गतिविधियाँ हद से अधिक इसी कारणों से हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि उसके मुसीबतें पड़ के हमें क्या मिलेगा। तो इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पर इवान नी ने जो है अपनी सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत को अपनाया और उन्होंने इसी बात के लिए साफ शब्दों में कहा कि अधिकांश अपराधी व्यवहार अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण के परिणाम होते हैं, कि समाज का नियंत्रण उन पर नहीं होता है, जिनके कारण वो गलत गतिविधियों में सम्मिलित हो जाता है। आज ये भी समय देखने को मिला है कि शहरी क्षेत्र में जो होता है, माता पिता सुबह ही जॉब पे निकल जाते हैं और बच्चे घर में क्या गतिविधियां कर रहे हैं उससे वो अनजान रहते हैं। आज भागम भाग ज़िंदगी में सामाजिक नियंत्रण जो है बहुत ही ढीला पड़ता जा रहा है, जिसके कारण बच्चे जो हैं आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर एफ इवान के द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत थी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी आपको वीडियो इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।